Welcome dear students in your science class. Today we will discuss the important topics which we will cover in today's lecture. The very first topic is importance of agriculture. The second one is basic agriculture practices. The third one is to define crop. Fourth is to understand different agriculture implements, both traditional and modern. The fifth topic will be advantage of using seed drill, difference between manure and fertilizer, irrigation technique, weeding technique, importance of storage and animal husbandry. So let us start, and our first point is what we will understand in this topic. These are the learning outcomes. After completing the lesson, we will able to answer all these topics. And what are the important terms? Like here we have crops, agriculture, kharif, rabi crop, and plow, hay, cultivator, seed drill, animal husbandry, moat, harvesting, sprinkler system. These are some important terms. All are the important terms which we will try to understand in this lecture. Now we are moving to our main topic. Dear students, इस लेक्चर से पहले हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड. So we are directly and indirectly dependent on plants. Now if we talk about the history of agriculture, the earliest humans were hunter gatherers. They were nomadic and did not cultivate. Like here we have agriculture originated around 10,000 to 12,000 years ago in Middle East, China, Egypt and Central America. Dear students, the earliest domesticated plants may be barley, wheat, rice, peas and etc. And you know, the animals like dog, goats, sheep and pigs were also domesticated. So, what is agriculture? Agriculture means the cultivating soil for growing crop and nurturing animals to provide food and other products. Plants और एनिमल्स को फूड और अदर प्रोडक्ट्स के लिए ग्रो करना, उनको नर्चर करना ही एग्रीकल्चर है. व्हाट इज़ क्रॉप? द सेम काइंड ऑफ प्लांट बीइंग कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप. एंड दिस टाइप ऑफ क्रॉप ये जिस प्लेस पर डेवलप की जाती है दैट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर फील्ड. उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर फील्ड कहते हैं. ओके. नाउ our next point is based on season we have two type of crops. The first one is खरीफ crop and the second one is रबी crop, जिसको हमने लास्ट क्लास में समझा था. इसको हम रेनी सीजन क्रॉप भी कहते हैं खरीफ क्रॉप को, और इसके अंदर राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट, कॉटन्स एक्सेट्रा क्रॉप्स आती हैं. और रबी क्रॉप की बात करें तो रबी क्रॉप में विंटर सीजन में ये डेवलप की जाती हैं और इनको हम वीट, ओट, मस्टर्ड, आलमंड एक्सेट्रा क्रॉप्स रबी क्रॉप के अंदर ही स्टडी की जाएंगी. एंड वी नो दैट there are two type of cropping patterns which are followed in India based on seasons or their climatic conditions like temperature, rainfall and humidity etc. So that is why we have two type of season of crop. First is rainy season which is known for kharif crop and the second one is winter season which is known for rabi crops. Okay. Then we have basic agriculture practices. Dear students, to ensure a good crop yield, for several activities are taken by the farmer over a period of time. Okay. And these activities are known as agriculture practices. इन सब को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं. And the machine and tools used for agriculture practices are called agriculture implements. They are called agricultural implements. Now the first one is preparation of soil.
सेकेंड वन इज़ सोइंग, थर्ड वन इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ वन इज़ इरीगेशन, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिफ्थ वन इज़ वीडिंग, सिक्स वन इज़ हार्वेस्टिंग, द सेवेंथ वन इज़ थ्रेशिंग एंड द एट्थ एंड लास्ट वन इज़ स्टोरेज। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। किसी भी फसल को एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर फील्ड पर डेवलप कराने के लिए हम मिट्टी को किस तरह तैयार करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बट बिफोर सोइंग द सीड्स द सॉइल शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर गुड यील्ड। एंड व्हाट आर द टूल्स with which help we prepare the soil? There are, number one is होय, जिसको हम जनरली फावड़ा भी कहते हैं नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज में। द सेकेंड वन इज़ प्लॉग, जिसको हम हल कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ कल्टिवेटर। एज यू कैन सी हेयर, द फर्स्ट वन इज़ होय, सेकेंड वन इज़ प्लॉग एंड द थर्ड वन इज़ कल्टिवेटर। ओके, नाउ वी आर मूविंग toward main point, that is hoy. What is hoy? So dear students, it is a simple tool which is used for removing weeds, जो कि कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं क्रॉप्स में, उसको हम वीड्स कहते हैं, उनको हटाने के लिए। एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, सॉइल को लूज़ करने के लिए हम एक टूल का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं होय। एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ होय। ओके, दिस इज़ अ ग्रिप वन, दिस वन इज़ हैंडल जिसको हम पकड़ते हैं, थर्ड वन इज़ बेंट प्लेट। It has a long rod of wooden or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and which work as a blade. So this act as a blade and it is pulled by animal, and this one is our beam and rod. So this is all about hoy. The second one is plog, जिसको हम नॉर्थ इंडियन एंड कॉमन लैंग्वेज में हल कहते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर आप कभी गांव में गए हों तो इस तरह का डिवाइस या टूल फार्मर्स यूज़ करते हैं। ये क्या होता है? इट इज़ ए टाइप ऑफ फार्म टूल विच इज़ यूज फॉर लूजनिंग और टर्निंग द सॉइल बिफोर सोइंग द सीड्स और प्लांटिंग। द प्लॉग्स वर ट्रेडिशनली ड्रॉन बाय ऑक्सन एंड द हॉर्सेस। आप यहाँ पर देखिए, दिस इज़ अवर प्लॉग एंड दीज आर द ऑक्सन्स। कल्टीवेटर। कल्टीवेटर में क्या होता है? आपने ज़रूर ये इस तरह का डिवाइस देखा होगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको ही हम कल्टीवेटर कहते हैं, जो कि सॉइल को कल्टीवेट करने के काम आता है। नाउ-ए-डेज प्लॉगिंग इज़ डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर एंड यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। नाउ व्हाट इज़ प्लगिंग? प्लगिंग क्या होती है? इट इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल यूजिंग ए प्लग और ट्रैक्टर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक प्लग है एंड दिस इज़ ए ट्रैक्टर, जिसकी हेल्प से हम किसी भी सॉइल को लूज़ करने का काम करते हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाए। द सेकेंड वन इज़ टिलिंग। अब इस मिट्टी को, इस सॉइल को लूज़ करने के बाद इसको प्लेन करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं टिलिंग। इट इज़ द लेवलिंग ऑफ सॉइल बाय ए प्लैंक। दिस इज़ अवर प्लैंक which is driven by oxen or tractor. This is our tractor. Okay, and this one is our plank which is used to prevent soil erosion. Next one is what are the advantages of plugging? हम क्यों करते हैं प्लगिंग? क्या इसका एडवांटेज होता है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फार्मर प्लगिंग कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस। यहाँ पर ये ट्रैक्टर प्लगिंग करने का काम कर रहा है। सो द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ प्लगिंग इज़ प्लगिंग मेक्स सॉइल लूज़। ये सॉइल को लूज़ करने का काम करता है ताकि हमारी जो फसल है, जो हमारी क्रॉप है, उसकी फर्टिलिटी अच्छी हो सके। एंड द सेकेंड वन इज़ इन लूज सॉइल रूट्स कैन पेनिट्रेट ईजली। जो रूट्स होती हैं वो अंदर तक जा सकती हैं ताकि उसको नेसेसरी मिनरल्स, वाटर ईजली से मिल सके। लूज सॉइल प्रोमोट्स एरेशन एंड प्रोमोट ग्रोथ फॉर फ्रेंडली माइक्रोब्स। द फोर्थ वन इज़ लूज सॉइल प्रोमोट्स percolation of water. Fifth one is plugging uproots unwanted plants already growing in the field. So ये सब क्या है? एडवांटेज ऑफ प्लगिंग है।
And the last one is plugging makes up the manure and the decomposing organic material very easily. जो भी हम क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए मैन्योर डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, एडवांटेज प्लगिंग क्या करता है, प्लगिंग उनको अच्छी तरीके से मिक्स करने का काम करता है. नाउ व्हाट इज सोइंग? एज यू कैन सी हेयर देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड्स. द नंबर वन इज़ ट्रेडिशनल मेथड जिसको हम यूज़ करते हैं, एंड द सेकेंड वन इज़ मॉडर्न मेथड जिसमें हम ट्रैक्टर या बड़े बड़े मशीन्स का यूज़ करते हैं. फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल मेथड विच इज़ कॉल्ड फनल, एंड द सेकेंड वन इज़ सीड ड्रिल मेथड विच इज़ ए मॉडर्न मेथड. फनल मेथड में हम फनल की हेल्प से सीड्स को मिट्टी के अंदर डालते हैं, और सीड ड्रिल मेथड में ये पूरा का पूरा काम मशीन कर रही है. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ सोइंग. सोइंग क्या होते हैं? द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड इन द फील्ड इज़ कॉल्ड सोइंग. सीड्स को फील्ड में अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर करना, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं. ये फार्मर सीड्स को क्या कर रहा है? स्कैटर कर रहा है, स्कैटर करने का काम कर रहा है. इज़ कॉल्ड सोइंग. एंड सोइंग बाय हैंड इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. व्हाट इज़ ब्रॉडकास्टिंग? व्हाट इज़ ब्रॉडकास्टिंग? सो द आंसर विल बी sowing by hand is called broadcasting. In broadcasting, the soil will not be in uniform or right depth. Now, what are the traditional seed drill? The tool which is used for traditionally for sowing seed is shaped like a funnel, जिसको हमने ओल्ड मेथड के टर्म्स में भी समझा था, ट्रेडिशनल मेथड भी हमने इसको कहा था. दिस वन इज funnel, and these seeds are filled into the funnel. और इस funnel के अंदर हम क्या भर देते हैं? seeds को भर देते हैं. and which pass through down 2 or 3 pipes having sharp ends. और फिर ये ends यहाँ से नीचे जाते हुए यहाँ पर फाइनली इस सॉइल में चले जाते हैं. These end pairs into the soil and places seeds here. But what are the disadvantages for this? The seeds are not sown at uniform distance. यहाँ पर जो seeds होते हैं वो एक particular distance पर uniformity के साथ यहाँ पर sowing नहीं होते, तो uniformity की कमी होती है यहाँ पर. Number 2 is seeds are not covered with soil instantly, so it could be eaten by birds. अब चूँकि यहाँ पर जो बीज होते हैं वो मिट्टी के अंदर नहीं दबते, इसलिए वो बर्ड्स उसको खा भी सकती हैं. ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है. सीड्स आर नॉट सोन बाय इक्वल डेप्थ. जो सीड्स होते हैं वो इक्वल डेप्थ पर नहीं जाते, कुछ ऊपर रह जाते हैं, कुछ नीचे चले जाते हैं. एंड इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड लेबर इन ट्रेडिशनल मेथड्स. सो वी हैव सम डिसएडवांटेज फॉर दिस ट्रेडिशनल सीड ड्रिल मेथड, जिसमें आप फनल की हेल्प से सीड्स को मिट्टी के अंदर डालते हैं. नाउ व्हाट आर द मॉडर्न सीड मेथड्स? मॉडर्न सीड ड्रिल मेथड में आप बड़ी बड़ी मशीन की हेल्प से और इस तरह के टूल्स की हेल्प से डायरेक्टली, आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइप है, और ये पाइप डायरेक्टली सीड्स को मिट्टी के अंदर इक्वल डेप्थ तक ले जाते हैं. द सीड ड्रिल सोज द सीड्स एट द प्रॉपर सीडिंग रेट एंड डेप्थ. जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वो मिट्टी के अंदर सीडिंग रेट उनकी यूनिफॉर्म होती है और वो इक्वल डेप्थ पर भी यहाँ पर मिट्टी के अंदर चले जाते हैं इन मॉडर्न सीड ड्रिल मेथड में. नंबर 2 इज़ इट इंश्योरिंग दैट द सीड्स आर कवर्ड बाय सॉइल. तो जो डिसएडवांटेज या जो कमियाँ हमारी ओल्ड मेथड में रह गई थी वो हमें मॉडर्न सीड ड्रिल मेथड में पूरी हो जाती हैं. उनको सही कर दिया जाता है कि वहाँ पर soil, the seeds were not covered by the soil, but in modern drill method the seeds are covered by the soil. And the important point is it saves time and labor, क्योंकि मशीन से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपका टाइम भी बच रहा है और आपका लेबर भी बच रहा है. इन मॉडर्न सीड ड्रिल मेथड, मॉडर्न सीड ड्रिल मेथड में आप बीज को किस तरह मॉडर्न टेक्निक की हेल्प से मिट्टी के अंदर डालते हैं और उनको कल्टीवेट होने का टाइम देते हैं. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स. कई बार आपने देखा होगा कि प्लांट
या क्रॉप्स के अंदर कुछ अनवांटेड प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं जिनको वहाँ से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो हमारी पूरी फसल को ख़राब ना करें. There are some undesirable plants growing naturally along with the crop which are known as weeds, and removal of the weed is called weeding. So for removal these type of unwanted plants or to cultivate our crop with higher efficiency, we add some manure and fertilizers. Now what do you mean by manure? These are the organic substances or we can say that ये हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं. दे आर रिच इन ह्यूमस. दीज आर द मैन्योर्स. आप यहाँ पर देखिए दीज आर द मैन्योर्स. ये मैन्योर्स हैं. वाट आर फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर्स आर द सिंथेटिक मटीरियल्स. दे आर इनऑर्गेनिक मटीरियल्स. ये हमें आर्टिफिशियली लैब से मिलते हैं एंड दे आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. फॉर एग्जांपल आपको अपने खेत में नाइट्रोजन देना है या फास्फोरस डालना है तो आप वहाँ पर फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे. और अगर आपको ह्यूमस डालना है या कोई भी आपको नेचुरल एलिमेंट अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में ऐड करनी है तो वहाँ पर आप मैन्योर को यूज़ करेंगे. नाउ एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स. इस तरीके से हाथों से ही कई बार तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को स्कैटर किया जाता है. और अगर एग्रीकल्चर फील्ड या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बड़ी होती है तो वहाँ पर हम बड़ी बड़ी मशीनों से मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को स्कैटर करने का काम करते हैं, फेंकने का काम करते हैं. द प्लांट्स मेनली रिक्वायर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फॉर हेल्दी ग्रोथ. और इसी को आप NPK भी कहते हैं. N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, P स्टैंड्स फॉर फास्फोरस एंड पोटेशियम स्टैंड्स फॉर K. रिपीटेड कल्टीवेशन रिमूव्स सॉइल न्यूट्रिएंट्स. बार बार मिट्टी को अगर आप कल्टीवेट करते रहते हैं तो उसके अंदर से कुछ न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं एंड दे कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स. और उन न्यूट्रिएंट्स को वापस से खेत के अंदर डालने के लिए ताकि खेत उनको रिकवर कर सके हम बाहर से कुछ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को अपने एग्रीकल्चर फील्ड में इंट्रोड्यूस कराते हैं. ओके. नाउ if we just compare manure and fertilizers so we will see that the manures are the organic substances. They are obtained from nature, but whereas fertilizers are inorganic substances. These are artificial. Okay. And manures are the natural. Next one is they are made from vegetables and animal waste, whereas fertilizers made up by chemicals. दे आर प्रिपेयर्ड एट होम. मैन्योर्स को आप घर पर भी बना सकते हैं जबकि फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए स्पेशली फैक्ट्रीज़ को लगाना पड़ता है. मैन्योर्स आर लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स बट वेयर एज फर्टिलाइज़र्स आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. कि आपको नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए या पोटेशियम चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ मैन्योर्स डू नॉट हार्म द सॉइल. क्योंकि ये नेचर से ऑब्टेन होते हैं. दे मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स. तो ये हमारी सॉइल को हार्म नहीं करते हैं. बट फर्टिलाइजर्स के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इनका क्विक रिजल्ट होता है, इसलिए हमारी सॉइल को हार्म करते हैं. मैन्योर्स का जो रिज़ल्ट होता है वो स्लो रिज़ल्ट होता है. बट वे ऑन द अदर हैंड फर्टिलाइजर्स का जो रिज़ल्ट होता है क्विक रिज़ल्ट होता है और ये सॉइल के टेक्सचर को भी चेंज कर देते हैं. आप यहाँ पर देखिए दीज आर द मैन्योर्स जो कि वेजिटेबल और एनिमल वेस्ट से मिले हैं एंड दीज आर द ये फर्टिलाइज़र्स जो कि केमिकल फैक्ट्री में बनाए जा रहे हैं. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइज़र्स? तो देखिए फर्टिलाइज़र्स के एडवांटेज क्या हैं. दे डिज़ोल्व फास्ट. वो जल्दी से मिल जाते हैं, घुल जाते हैं. प्लांट एब्जॉर्ब फास्ट एंड गिव क्विक रिजल्ट. ये क्विक रिज़ल्ट देते हैं, जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट इनको, इनका रिज़ल्ट अच्छा होता है. ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं कि प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए या पोटेशियम चाहिए. सॉइल की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, प्लांट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, फर्टिलाइज़र्स उसको तुरंत फास्ट मोड में सोल आउट करता है. बट
इसी के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इट पोल्यूट्स द सॉइल एंड वाटर बॉडीज कॉजेज यूट्रोफिकेशन। ये हमारी सॉइल को, वाटर को, जब उसके अंदर कोई वाटर के अंदर जब कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाती हैं, तो वो उसको क्या कर देती हैं? पोल्यूट करने का काम करती है। इसी तरह अगर सॉइल के अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसको इफ़ेक्ट करता है। इट चेंजेस द सॉइल केमिस्ट्री, इट मेक्स द सॉइल टू एसिडिक और टू बेसिक, बिकॉज जो पीएच होती है सॉइल की वो अप्रोक्सीमेट 6 to 7 के बीच में वर्क करती है, बट बहुत ज़्यादा एसिड या बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर भी कई बार देखने के लिए मिलती है, जो जस्ट बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज़ करने से होती है। इट किल्स सॉइल ऑर्गेनिजम्स, इट रिड्यूसेस द सॉइल पोरोसिटी। कई बार मिट्टी के अंदर छोटे छोटे होल हो जाते हैं जहाँ से प्लांट, यहाँ पे जो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं वो सांस लेने का काम करते हैं, ब्रीदिंग करने का काम करते हैं, बट फर्टिलाइज़र की वजह से ये सब पोर्स बंद हो जाते हैं और वो अंदर ही मर जाते हैं। और आपको जान के ये स्ट्रेंथ लगेगा कि वो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो प्लांट्स के लिए, सॉइल के लिए हेल्पफुल होते हैं। इट अफेक्ट्स द फूड चेन, ये फूड चेन को अफेक्ट करता है। और फूड चेन क्या होता है? जैसे ऑटोट्रॉप्स हो गए। ऑटोट्रॉप्स के बाद आपके पास हार्बीवोरस हो गए, ओमनीवोरस हो गया, कार्निवोरस हो गया, डिकम्पोजर्स हो गए, तो ये सब आपके फूड चेन में काउंट किए जाते हैं। इट अफेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ। अब जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी क्रॉप्स हैं, उनको कभी ना कभी तो ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करेंगे। अगर आप मिट्टी के अंदर केमिकल्स डाल रहे हैं तो वो प्लांट के अंदर जाएंगे और प्लांट के बाद दे विल एंटर इनटू अवर बॉडी, वो ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट करने का काम करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स जो कि हमें नेचर से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? ये हमें नेचर से मिलते हैं, लाइक वेजिटेबल्स एंड एनिमल वेस्ट। ओके, अब दे एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, इट प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब ऑर्गेनिज्म। ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जो नेचर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं मैन्योर्स। इट इंक्रीज द एरेशन एंड परकोलेशन ऑफ वाटर and they add more humus to the soil. So these are some advantages of manure. Replenishing of soil, आप किस तरीके से सॉइल को वापस रिप्लेनिश करने का काम करते हैं। वेरियस प्रैक्टिसेस यूज टू रिप्लेनिश द सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर फील्ड फैलो, क्रॉप रोटेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजेशन। मल्टीपल क्रॉपिंग, एक ही खेत में आप अलग अलग तरह की क्रॉप्स को डेवलप कराते हैं। क्रॉप रोटेशन, 3 months आप एक तरह की क्रॉप को लगाते हैं, 3 months एक तरह की क्रॉप लगाते हैं, 3 month एक तरफ ही क्रॉप को आप लगाते हैं। मतलब इट मीन्स आप एक ही फील्ड में अलग अलग रिक्वायरमेंट की क्रॉप को लगाकर क्रॉप रोटेशन करते हैं, जिससे फार्मर्स को फाइनेंशियल भी अफेक्ट नहीं होना पड़ता और जो आपका एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें भी उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है। मैन्योर का ज़्यादा यूज़ करके, फर्टिलाइज़र्स का कम यूज़ करके भी आप सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं।